transformation of your life is seen with your actions. आपके जीवन का परिवर्तन आपके कामों से दिख पड़ता है। If you don't show with your actions, it is not transformed. अगर आपके कामों में परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो आपका बदलाव परिवर्तन नहीं हुआ है। It is just like a mask. ये एक चेहरा लगाया, मुखौटा लगाया जैसा है। But my brothers and sisters, लेकिन मेरे भाई और बहनों, Jesus is looking to your heart. यीशु आपके दिल को देख रहे हैं And He knows that you want to be और transformed. वो जानते हैं कि आपको बदलाव की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। The thing is, you should act. करना ये है कि आपको काम करना है, Your action should change. आपके कामों को बदलना है। Before coming to in Christ, प्रभु में आने से पहले whatever you were doing, जो कुछ भी आप कर रहे थे, if you are doing the same thing, अगर आप आज भी वही कर रहे the हैं, same practices, वही आदत हमारी है। if you were saying lie and you still say lie, अगर आप पहले भी झूठ बोलते थे, प्रभु में आने के बाद भी आज भी झूठ बोल रहे हैं, if you say promise something and you don't complete the promise, और अभी आप कुछ प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन आप उसको पूरा नहीं करते हैं, then you are not walking on the path of God. तब आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। I welcome you all in the house of the Lord today. परमेश्वर के भवन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। Smile and say, I'm happy because I'm in the house of the Lord. मुस्कुरा के कहें, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में हूँ। Yes, God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Let's come straightly to the point. आइए हम जल्दी से अपने विषय पर आएंगे। I want to speak to you about to whom do you surrender. मैं आपसे इस विषय में कि आप किसको समर्पित है बात करना चाहता हूँ। Yes, to whom do you surrender? आप किसको समर्पित करते हैं? Obviously, your answer is that you surrender to Jesus आपका उत्तर जाहिर है कि यही होगा कि मैं यीशु को समर्पित हूँ, because you are the follower of Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, You are a believer of Jesus. आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं। But when we speak about surrender today, लेकिन जब हम आज समर्पण की बात करते हैं, then you will understand तब आप समझेंगे what are the things you are surrender into your life. कौन सी चीजें हैं अपने जीवन में जिसको आपको समर्पित करना है। We are surrounded by many challenges, by many things around us. हम बहुत सी चीजों के साथ बहुत सी चुनौतियों से घिरे हुए होते हैं। In day-to-day life, when we walk, प्रतिदिन के जीवन में जब हम चलते हैं, we are challenged every day. हमारे पास हर दिन चुनौतियां होती And हैं every day is a testimony for us. और हर दिन हमारे लिए गवाही का दिन भी होता If है। you win the war, अगर आप युद्ध को जीतते हैं then you celebrate. तब आप विजय को मनाते हैं, But we don't celebrate every night. बट लेकिन हम हर रात को नहीं मनाते। We say thank you, Jesus. हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु We sleep. और हम सो जाते हैं। Every day we are in a battle. हर दिन हम एक युद्ध में हैं। Surrender is a common word. समर्पण एक साधारण शब्द है। What is surrender? समर्पण क्या है? Surrender is to stop fighting and admit that you have lost. समर्पण युद्ध करना बंद करके अपने आप को समर्पित कर देना या समझ लेना कि आप है क्या। Yes, the one who continues to fight shows that he is not submitted to the situation or the challenges. जो लड़ाई करता ही रहता है, वो इस बात को दिखाता है कि वो चुनौतियों के सामने हारा नहीं है, लेकिन लड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। Come on loudly. Hallelujah. We are not surrendered to devil. हमने शैतान को समर्पण नहीं किया है, We are surrendered to Jesus. हमने यीशु को समर्पण किया है। But there are situations पर परिस्थितियां हैं, or the person so he resists, but the one who gives up show that he has lost and is submitted to the situation. सभी व्यक्ति समर्पित नहीं होते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समर्पण करता है वो बताता है कि उस परिस्थिति में वो हार चुका है। Yes. So Jesus is speaking to us today. सो प्रभु आज हमसे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। Today we are some or the other way surrendered and submitted ourselves to situation and challenges. आज हमें देखने को मिलता है हम कहीं न कहीं अपने जीवन की चुनौतियों में या परेशानियों में समर्पण हो जाते हैं। Sometimes we are forcefully surrendered to the situation. कई बार हमें मजबूर किया जाता है कि हम परिस्थिति के अधीन हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। The key verse we are looking is Romans 6. जो मुख्य वचन है आज जिसको हम देख रहे हैं वो हमको मिलता है रोमियो की किताब के 6 अध्याय। Anybody can read it. कोई भी पढ़ सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि जी। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know that when you offer yourself to someone,
as obedient slave. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो? You are slave to the one you obey. आप उसी के दास हो जिसकी आप आज्ञा को मानते हो। We are surrounded by challenges. हम चुनौतियों उसके घिरे हुए हैं। We are surrounded by positive and negative people. हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के लोगों से घिरे होते When हैं। the people say negative to us जब लोग नकारात्मक होते हैं हमारे पास and we obey it, और हम उनकी बात को सुनते हैं, then we are slave of that negativity. फिर हम उस नकारात्मकता के गुलाम हो जाते The हैं। Bible says, पवित्र शास्त्र you कहता are है, slave of the one you obey. पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम उसके दास हो जिसका हुक्म तुम मानते हो। So whom do you are obeying today? तो आज सवाल ये है कि आप किसका हुक्म मानते हो? Whether you are slaves to sin, क्या आप या तो आप पाप के गुलाम हो which leads to death. जो मृत्यु की तरफ आपको अग्रसित करता है, Sin will eventually lead you to darkness and death. पाप आपको धीरे धीरे अंधकार और मृत्यु की तरफ ले जाएगा, Or to the obedience which leads to righteousness. आज्ञाकारिता आपको धार्मिकता की तरफ अग्रसर करेगी। Hallelujah. हालेलुया। Surrender is a word that often carries a sense of defeat or loss. समर्पण वो शब्द है जो उसके अर्थ में एक पराजय या नुकसान को भी समाविष्ट रखता है। Yes, but in the spiritual realm, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में surrender takes on a different meaning. समर्पण का एक अलग अर्थ होता It है। is about losing. ये खो देने के विषय में है, It's about gaining. ये प्राप्त करने के विषय में It है। is not about losing, but it is about gaining. ये खो देने के विषय में नहीं, लेकिन प्राप्त करने के विषय में है। It's not about being weak, ये कमजोर होने के विषय में नहीं, but it's about being strong. लेकिन मजबूत होने के विषय में है। Hallelujah. हालेलुया। When we surrender, जब आप समर्पित हो it जाते हैं, reveals who we truly serve. ये दिखाता है कि आप किसकी सेवा करते हैं, Yeah, true, who we truly obey. आप सच्चाई से किसका हुक्म मानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Who holds our life, कौन आपके जीवन को संभाले रहता है, or who determines the direction of our life. या कौन आपके जीवन के दिशाओं को निश्चित निर्धारित करता है। Bible always teaches us बाइबल हमें शिक्षा देती है to surrender ourselves, कि हमें अपने आप को समर्पित करें, to do ये करने के लिए for the will of God. कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। Everyone surrender to something or to someone. हर एक मनुष्य अपने आप को किसी न किसी वस्तु या मनुष्य के अधीन करता है। As a believer, एक विश्वासी होने के we are नाते called to examine our life and identify आपको अपने जीवन का परीक्षण करने, निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया। the influence to which we surrender. प्रभाव उसका पड़ता है जिसको आप समर्पित हो जाते हैं। Yes, it is God's voice that directs us. ये परमेश्वर की आवाज है जो आपको निर्देश देती है। Yes, to direct us on the proper path to walk on. वो निर्देश देती है कि आप सही मार्ग पर रहें और चलें। The first thing which I would like to share with you, पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, the nature of surrender. समर्पित होने का स्वभाव। What is the nature of surrender? स्वभाव क्या है समर्पित होने का? Surrender in the context of faith is about yielding our will to God's will, aligning our will to God's will. विश्वास के क्षेत्र में समर्पण की परिभाषा ये होती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के समरूप हो जाएं। It is an act of obedience and trust and acknowledging that we cannot navigate this journey of our life. ये वो क्षेत्र है जो हमको अपने आप में निर्देश न करते हुए परमेश्वर के अधीन होकर अपनी दिशाओं को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। When we surrender to God, जब आप परमेश्वर को समर्पित होते हैं, surrender is a nature. समर्पित होना एक स्वभाव है। Yes, when we surrender to God, we open ourselves to Him that He can transform us. जब आप समर्पित होते हैं परमेश्वर को, तो हम अपने आप को खुला कर देते हैं कि परमेश्वर हमको तब्दील करें, And the transformative power of God enters in us. और परमेश्वर की परिवर्तित करने वाली या बदल देने वाली सामर्थ हमें प्रवेश करे। Yes, surrendering to sin, what does it mean? पाप के प्रति या पाप के साथ समर्पित रहना या अधीन रहना, Let's इसका read. क्या अर्थ है? आइए हम पढ़ते हैं। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? जी, Yes. To understand the nature of surrender, we must first examine what is meant to be surrender to sin.
समर्पण के अर्थ को समझ लेने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि पाप के अधीन होना या पाप को समर्पित रहने का अर्थ क्या है। Sin often promises freedom but ultimately leads to bondage and spiritual death. पाप हमेशा आजादी को दिखाता है या दर्शाता है, लेकिन अंत में वो हमको गुलाम बना देता है। Yes. In the world when we see there is more attraction आप संसार में देखते हैं बहुत ज्यादा आकर्षण है, and ultimately it leads to your depression and it leads to all the negative and the bad things that happens in your life. और अंत के अंदर में वो आपको डिप्रेशन यानी अवसाद में लेकर के जाता है और आपको उस क्षेत्र में ले जाता है आपके जीवन में जहां हर प्रकार की बुरी बातें घटती है। For example, उदाहरण के लिए if we see a very famous person अगर आप एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति को देखते हैं or some celebrities, या कोई पिक्चर के हीरोज को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते we हैं, see them they are having a good life. आप देखते हैं कि उनके पास एक अच्छा जीवन है, But what about their spiritual life? लेकिन उनके आत्मिक जीवन के विषय में क्या? If you see them very closely अगर आप उन्हें बहुत नजदीक से देखते हैं and if you ask someone who has very closely associated with them, और अगर आप उससे जो उनके बहुत करीब है कुछ पूछते हैं, then you will understand that life is not having peace. तब आपको ये बात समझ में आएगी कि उनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। But we are the blessed one that we have peace of God with us. लेकिन हम अनुग्रहित लोग हैं कि हमारे पास में परमेश्वर की दी हुई शांति है। Hallelujah. हालेलुया। We have the peace of God with us. हमें परमेश्वर की शांति हमारे साथ है, That's why we don't need glamour. इसीलिए वही हमारी खूबसूरती है। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus is our peace of prince. क्योंकि यीशु मसीह हमारे शांति का राजकुमार है। Hallelujah. हालेलुया। Paul reminds us that we were slaves to sin. परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम एक समय पाप के गुलाम थे। We experienced no benefits. हमें किसी प्रकार का फायदा कभी नहीं होता था, Instead, we were left with guilt, लेकिन हम दोष की भावना में जीते थे, shame, शर्म की भावना में रहते and थे brokenness. और टूटी हुई अवस्था में होते थे। We have read the verse. हमने वचन को पढ़ा When we were slaves to sin, जहाँ लिखा है जब तुम पाप के दास थे you were free from the control of righteousness. तो तुम धर्म की नियंत्रण से आजाद थे। My dear church, मेरे प्रिय कलीसिया understand, समझें, when you are close to sin, जब आप पाप के नजदीक हैं then you are away from righteousness of तब आप God. परमेश्वर और धार्मिकता से अलग हैं, Then we are losing the benefits of righteousness. तब आप धार्मिकता के फायदों से वंचित रह जाते हैं। Yes, we are not experiencing the blessings of righteousness. आप धार्मिकता की आशीषों का अनुभव नहीं करते हैं। What benefit did you reap कौन सा फायदा है जिसको आप काटते हैं? at that time from the things you are not ashamed of? You are और- now ashamed of. और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप शर्म को नहीं महसूस करते हैं? Those things result in death. वो चीजों का परिणाम मृत्यु में होता है। This is the world we are living in it. ये संसार है जिसमें हम रह रहे हैं आज। Second thing, surrendering to obedience. दूसरी बात, आज्ञाकारिता को समर्पित When होना। we surrender to obedience of God, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को समर्पित होते हैं, when we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, what does it do? क्या करते हैं? The obedience leads to righteousness आज्ञाकारिता धार्मिकता की तरफ ले जाती है and eternal life. और अनंत जीवन की तरफ ले जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Paul emphasized that while the wages of sin is death, पौलुस इस बात पर जोर देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, but the gift of God is eternal life. लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, the gift of God is eternal life. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ करके कहें कि परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। You did very well, but you can smile and say, because you are saying something very blessed. आपने बहुत अच्छा किया बोला, लेकिन आप इससे अच्छा कर सकते थे क्योंकि बहुत आशीषमय आप बात बोल रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा के बोल सकते थे। Hallelujah. हालेलुया। Next time I give you a chance. अगली बार एक और मौका आपको मिलेगा। Surrendering to obedience requires yielding to God's commandment. आज्ञाकारिता को समर्पित रहना का अर्थ होता है कि में जरूरत होती है परमेश्वर के हुक्म को मानने की, God's commandments. परमेश्वर की आज्ञाएं, Allowing His word to guide us. उसके वचन के साथ जो हमारा मार्गदर्शन करता है, Allowing His word to be our action. उसके वचन को हम इजाजत दें कि हमारे अंदर में वो क्रियान्वित हो And follow His ways. और उसके वचनों का पालन करें। Very simple is बहुत आसान है, to follow God's way. परमेश्वर के मार्गों पर चलना बहुत आसान है, But when we start thinking from our mind, लेकिन जब हम अपने दिमाग से सोचने लगते हैं
then it becomes very difficult. तब ये बहुत कठिन हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why word says, do not lean on your own understanding, but It's- God's will. इसीलिए वचन कहता है कि अपनी समझ से नहीं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। Hallelujah. हालेलुया। But now that you have set free from sin, the next verse says, लेकिन दूसरा वचन कहता है कि पर अब जब तुम पाप से आजाद हो गए हो and you have become slaves to God, और तब आप परमेश्वर के दास बन गए हो the benefit you reap और उसका फायदा जो फल आपको मिला leads to वो आपको अग्रसित करेगी holiness. पवित्रता की तरफ And the result is eternal life. और परिणाम होगा अनंत काल का जीवन। Yes, the nature of surrender, समर्पण का स्वभाव, surrender to sin leads to death, पाप को समर्पण मृत्यु की तरफ ले जाता है, surrender to obedience leads to righteousness. आज्ञाकारिता के अधीन रहना धार्मिकता की तरफ ले जाए। Hallelujah. हालेलुया। Are we clear? आप समझ रहे हैं? Are you learning something? आप कुछ सीख रहे हैं? You know what is sin. आप जानते हैं पाप क्या है That's why I'm not teaching you what is sin. और इसलिए मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि पाप क्या है। You know what is righteousness. आप जानते हैं धार्मिकता क्या है, That's why I'm not teaching you righteousness. इसलिए मैं आपको धार्मिकता क्या है नहीं सिखा रहा हूँ। Now surrendering in the times of difficulty. This is very good. ये कठिन समय में समर्पित होना ये बहुत अच्छी चीज है। Surrender is not just for a moment of spiritual clarity. आत्मिकता में कुछ क्षणों के लिए सरेंडर होना ये समर्पण नहीं है। It is for the times of difficulty and uncertainty. जो आपके जीवन में असुरक्षित समय है या कठिन समय है उसके समय में समर्पित होना है। See what Psalm says. देखिए भजन में क्या लिखा है। अपना Hallelujah. हालेलुया। Do you get excited by reading this word? आपको ये वचन पढ़ के प्रोत्साहन होता है। It says, ये कहता है cast your cares on the Lord and he will sustain you. अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दे वो तुझे संभालेगा। He will never let the righteousness be shaken. वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया। The wind will come, हवाएं आएगी, the storm will come, तूफान आएंगे, but you won't be shaken. लेकिन आप हिलाए नहीं जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because you are righteousness. क्योंकि आप धार्मिक हैं। Never let the righteousness be shaken. God will never let the righteousness be shaken. If you are righteousness, you will be firm and strong. आपकी धार्मिकता को कभी हिलने न दे। आपको परमेश्वर आपकी धार्मिकता को कभी टलने नहीं देगा, लेकिन धार्मिकता में आप मजबूत बने। The first thing was you are understanding the nature of surrender. पहली बात आप जो समझ रहे हैं वो है समर्पण का स्वभाव। Now second main point is the outcome of surrender. अब दूसरा मुख्य विषय है कि सरेंडर का परिणाम क्या होता है। When we surrender, what is the outcome? जब आप समर्पित हो जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। We all are surrendered to God हम सब परमेश्वर को समर्पित हैं and expect blessings from God. और परमेश्वर से उम्मीद करते हैं आशीषों की, But we are receiving few blessings. लेकिन हमें बहुत कम आशीषें मिलती है। So let's clear this point in the house of Lord today. तो आइए इस विषय को परमेश्वर के भवन में जब हम सुन रहे वचन को साफ साफ समझें, So that we can receive all the blessings of God. ताकि हम परमेश्वर की सब आशीषों को हासिल करें। The outcome of surrender is directly related to whom we surrender. सरेंडर या समर्पित होने का परिणाम उस पर आधारित होता है कि आप किसको समर्पित हैं। Yes, it directly is related to whom we are surrendered in our life. इसका सीधा संबंध है कि हमारे जीवन में हम किसके अधीन रहते हैं। If we surrender to sin, it leads to brokenness अगर हम पाप के अधीन हैं तो हमारे अंदर में टूटा और बिखरापन है and separation of God. और परमेश्वर से अलगाव भी है। Understand this. समझें इसको। When God is going away from your life, जब परमेश्वर आपके जीवन से दूर चला जाता है, what is entering? क्या प्रवेश करता The है? power of darkness is ultimately attacking you every day, so it will enter in your life. अंधकार की ताकत जो रोज आपके जीवन पर आक्रमण करती है वो आपके जीवन में प्रवेश करे, Because the power of God, you are being separated from God. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर आपसे अलग हो चुका है। When God is coming closer to your life, जब परमेश्वर आपके जीवन के नजदीक आते हैं, the power of darkness will flee from your life. अंधकार की ताकत आपके जीवन से भागने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। The outcome of surrender leads to brokenness if you surrender to sin. अगर आप पाप के
वो पाप के अधीन है या पाप को समर्पित है, तो आपके जीवन में टूटापन होगा। But when we surrender to God, it leads to righteousness, transformation and restoration of our relationship. लेकिन जब आप परमेश्वर का समर्पित है तो आपके जीवन में पुनर्बांधनी होगी, परिवर्तन होगा। Hallelujah. हालेलुया। Surrender leads to transformation. समर्पित रहना बदलाव को लाता है। Paul urges us that we offer our bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. पौलुस हमें इस बात के लिए आह्वान देता है कि हम अपने शरीर को जीवता, बहावता, पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं। This act of surrender transforms us, renewing our mind and allowing us to discuss God's will. इस प्रकार का समर्पण हमें इजाजत देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के समरूप हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। If I ask you, मैं अगर आपसे पूछूं, when you have accepted Jesus जब आपने प्रभु का स्वीकार किया and surrender yourself to God, और अपने आप को परमेश्वर को though समर्पित you have किया, obviously done it, मैं समझता हूं कि सबने इसको किया है, but did you change your life? परंतु क्या आपने अपने जीवन को बदला? The word says, do not conform the pattern of this world, वचन कहता है कि संसार के सदस्य न बनो, but be transformed by the renewing of your mind. लेकिन आपके बुद्धि के नए जाने से तुम बदलते जाओ। Are we transformed? क्या आप बदल गए हैं? Are you the same person that you were before accepting or surrendering to God? या फिर क्या आप वही व्यक्ति हैं जो आप प्रभु को स्वीकार करने से पहले थे, अब भी वही व्यक्ति है? What is the transformation in your life when you have given your life to God? जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? Did you change the way you walked क्या earlier आप जिस with प्रकार God? से चलते थे परमेश्वर के साथ उसमें तब्दीली आई? Did your love for God become more bigger or broader? परमेश्वर के प्रति क्या आपका प्रेम अब ज्यादा हो गया है? Did you like try to go more fellowship with God? क्या आप ये कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की संगति में, लोगों की संगति में ज्यादा सहभागी हो? Or the simple point, did you give God the first priority of your life? या बहुत सीधा विषय अगर लें तो क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता या प्रथम स्थान देते As हैं? I am speaking to you, you should examine yourself. मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को जांच करें। If you have given first priority to God, then every Sunday you would be in the house of God. अगर आपने परमेश्वर को प्राथमिकता दी है तो प्रति रविवार को आप परमेश्वर के भवन में होंगे। If you have given priority to God, you will be before church time in the house of God. अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दी है तो परमेश्वर के भवन में आप समय से पहले उपस्थित होंगे। If you travel with train or flight, अगर आप ट्रेन से या हवाई जहाज से यात्रा करते हैं or even with bus, या बस से भी आप यात्रा करते हैं, how minutes earlier for a bus you go for the bus station to travel? कितने समय पहले आप बस के निर्धारित समय से बस स्टेशन में पहुंच जाते हैं? उससे समय से कितना पहले पहुंच जाते हैं? Wow, very nice to hear that. बहुत अच्छा लगा सुनकर। But I will ask you, but you should not answer. मैं आपसे पूछूंगा लेकिन आप उत्तर न दें। We all know that. आप सब जानते हैं How much time before you come in the house of God? आप परमेश्वर के भवन में समय होने से कितना पहले आते हैं। This shows the transformation of your life. ये दिखाता है हमारे जीवन में कितना बदलाव हुआ। What is the transformation? क्या बदलाव क्या है? Yes. God will help us to overcome this. परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम इसके ऊपर विजय को हासिल We करें। need to give God the first priority of your life. हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। This is the transformation I'm asking about. ये वो बदलाव की बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। What transformation happened? क्या बदलाव हुआ है? You didn't have a vehicle, God gave you vehicle आपके पास में गाड़ी नहीं थी, व्हीकल नहीं था, परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी so that you can travel very well. ताकि आप बहुत अच्छे से यात्रा कर सकें। After that, उसके बाद what is the vehicle used to come in the house of the Lord very well? परमेश्वर के भवन में आने के लिए, अच्छी तरह से आने के लिए क्या उस व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है? Our love of God shows our action. परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमारे कामों में दिखता है। Yes, whatever we act shows that how far we are acknowledging or loving our God. हम परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, कितना करते हैं और परमेश्वर का कितना स्वीकार करते हैं, हमारे कामों से वो दिख पड़ता है। Do not come from the pattern of this world. संसार के सदस्य न हो जाए। This is the word of God which is speaking to us. ये परमेश्वर का वो वचन है जो हमसे बात कर रहा है इस वक्त। When we are surrendered to God, जब हम परमेश्वर को समर्पित हैं, don't let the worldly pattern enter in us. संसार की सदस्यता या संसार के तौर तरीके हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की तरफ पलटें और कहें,
we will be transformed completely. हम पूरी तरह से बदल जाएंगे। कैसे बदल जाए? Loudly. जोर से कहें। हम पूरी रीति से बदल जाए। यस, दोनों Now तरफ- say, दोनों I तरफ। will be transformed completely. अब बोलिए, मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। मैं पूरी रीति से बदल जाऊँ। Many people are telling to me, so it's okay. I will see how far you have transformed. बहुत से लोग मेरी तरफ देख करके बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं देखूंगा आपको कि आपने कहा मैं बदल जाऊंगा, तो आप कितना बदलेंगे मैं देखूंगा। What are the areas of your life when you are fully transformed? आपने आपके जीवन के कौन से क्षेत्रों में आप पूरी तरह से बदल गए, वो भी मैं देखना चाहूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Surrender leads to divine guidance. अधीनता अलौकिक मार्गदर्शन की तरफ ले जाती है। Surrendering to God's grant us access to His divine guidance. परमेश्वर को समर्पित होना परमेश्वर के स्वर्गीय मार्गदर्शन को हासिल करवाता है। Yes, God's divine guidance. परमेश्वर के स्वर्गीय निर्देशों को हमें हासिल करवाता If है। you read Proverbs 3, 5 and 6, अगर आप नीति वचन की किताब के 3 अध्याय और 5वें वचन को पढ़ते हैं, it says, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. ये कहता है कि परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। Surrendering to God leads to true freedom. परमेश्वर के ऊपर समर्पित रहना आपको सच्ची आजादी की तरफ ले Read जाता the verse which is on your है। screen. पढ़िए वचन को जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। This is said. ये कहा गया है, If the Son sets you free, अगर पुत्र में आपको स्वतंत्र करेगा, hallelujah, हालेलुया, you will be free indeed. आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। We all need freedom. हम सबों को आजादी चाहिए, Freedom from sin. पाप से आजादी, Freedom from curses of generations. वंश से आने वाले शापों से आजादी चाहिए, Freedom from the satanic powers. शैतानी ताकतों से आजादी चाहिए, Freedom from the bondages of sickness. बीमारियों के बंधनों से आजादी So चाहिए। who will set us free? कौन हमें आजाद करेगा? Loudly. पुत्र पुत्र आजाद करेगा। Don't just say without words. Lift Say your- with voice. आवाज के साथ कहें। Who will set you free? यीशु मसीह। Son will set you free. Yes. पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा। Hallelujah. Hallelujah. And the last thing we are studying is और आखिरी विषय है जो हम पढ़ने वाले हैं, the call to surrender. हमें एक बुलाहट है समर्पण होने के लिए। Hallelujah. We all are called to surrender to God. हमें सबको बुलाया गया है कि हम परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। God has called us with specific purpose. परमेश्वर ने हमें एक विशिष्ट उद्देश्य से बुलाया। Understand, surrender is a daily commitment. समझ लें कि समर्पित होना रोज की वाचा बांधने जैसा है। Yes, it's a daily commitment, daily thing with God to do. रोज परमेश्वर से वाचा बांधना है, रोज परमेश्वर से बताना है, Requiring us to let go of our own desire and embrace God's plan in our lives. समर्पण होना परमेश्वर को रोज बताना है, जिसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ दें और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश। Jesus calls us to take up our cross daily and follow Him. प्रभु यीशु मसीह ने हमें आमंत्रित किया कि हम अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन उसका अनुसरण करें। The call to surrender is about living a cruciform life. जिस परमेश्वर को हमें समर्पित होना है, उस परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार हमें क्रूस उठा करके चलना है, Where we die to ourselves and live the Christ. जहां हम अपने आप के लिए मर जाते हैं लेकिन यीशु मसीह के लिए जीते हैं। What does it mean when we die for ourselves? क्या अर्थ है इसका कि हम अपने लिए मर जाते हैं? It is that we are killing our desires. इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं। The things which is separating us from God, we are killing it. वो चीजें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, हम उसको मारते हैं। It is our will that we are letting our will go down and let the will of Father being focused on walking on the will of the Father. इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं को नीचे और नीचे दबाते चले जाते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है जानकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hebrew 11:1 says, इब्रानियों की किताब का 11 अध्याय पहला वचन कहता है, surrender in faith means trusting in God's promises. परमेश्वर विश्वास के समर्पित रहना मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना। God's promises even when we cannot see the outcome. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जिसका हम परिणाम अब नहीं देख सकते, What will be happening, but we have the promises of God that it will happen. परमेश्वर की वाचाओं में
अभी क्या हो रहा है वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो घटने वाला है, वो होगा। Let's read what does it say. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Hallelujah. हालेलुया। We have read this many times. हम इस वचन को बहुत बार पढ़े हैं। Faith as the assurance of the thing we hope for, the conviction of the things not seen. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। The true faith is about believing in God's plan and His godness. सच्चा goodness. विश्वास परमेश्वर की योजनाओं में और परमेश्वर की इच्छाओं में विश्वास रखना है, Even while life is uncertain or challenging. जबकि जीवन अस्थिर है और चुनौतियों से भरा हुआ है। Yes, when the life is challenging, जब जीवन चुनौती से भरा हुआ we है, have faith on God. हमें परमेश्वर पर विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया। What will God do? परमेश्वर क्या करेगा? In challenges, what will happen? चुनौतियों में, कठिन समय में क्या होता है? Yes. यस, Blessing is a word. When we say we are in challenges, He will bless, so He will bless you with more challenges. चुनौतियों में आप जब कहेंगे कि परमेश्वर आशीष देगा, कहने का मतलब फिर परमेश्वर और भी चुनौतियां आपके जीवन में देगा। In the challenges, God will redeem you. परमेश्वर चुनौतियों के समय में, कठिन समय में आपको छुड़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We serve a God who is a living God. हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं जो जिंदा खुदा है, And He is having His eyes over His children all the time. और उसकी आंखें उसके हर बच्चों पर हर समय लगी रहती है। Whatever is happening in your life, what you are thinking, God is there with you. जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, परमेश्वर वहां आपके साथ है। We see that no one is observing us. आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, God is always with you. लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। He is taking care of you. वो आपका ख्याल करता है। When you are alone, जब आप अकेले हैं, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। When you pray to God, जब आप परमेश्वर से दुआ करते He is हैं, listening to you. वो आपको सुन रहा है। Our word says, हमारे शब्द कहते हैं, the scripture says, वचन कहता है, He has ears and He listens to us. उसके कान हैं, वो हमारी सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। He hath mouth and He speaks. उसके मुंह है और वो बोलता है। He has eyes so He sees us. उसकी आंखें हैं और वो आपको देख सकता है। Hallelujah. हालेलुया। We are serving a living God. हम जिंदे खुदा की आराधना करते When we हैं। surrender to obedience, जब हम आज्ञाकारिता को समर्पित हैं, surrendering in obedience is a testimony to our love of Christ. आज्ञाकारिता पे समर्पित होना परमेश्वर के प्रेम की गवाही है। Jesus said in John 14:15, यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब के 14 अध्याय 15 वचन में कहा, what He said? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Are you obeying the commandment? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? God is listening to you. परमेश्वर आपको सुन रहा है। Hallelujah. हालेलुया। If you are not obeying the commandment of God अगर आप परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते हैं, and you are saying you're loving Jesus, अगर आप कहते हैं फिर भी आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, then it is only a word. ये केवल आपके शब्द होंगे। It is not with a true of feeling. ये सच्ची भावना से महसूस करके नहीं कर रहे हैं। We are not here to judge. हम यहाँ न्याय करने के लिए नहीं We हैं। are here to help you हम यहाँ इसलिए कि आपकी मदद करें, that your spiritual life should not perish. ताकि आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट न हो, You should grow. आप बढ़ें। Your love for God should grow. आपके प्रति, आपके जीवन का प्रेम परमेश्वर के प्रति वो बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। If you love God, you will keep His commandment. अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, उसके हुक्म को मानोगे, You will obey Him. आप उसके हुक्म को If मानोगे, you obey God, और परमेश्वर के हुक्म को मानना, righteousness, you will be in the path of righteousness. आप धार्मिकता के पद पर होंगे, And when you will be in the path of righteousness, और जब आप धार्मिकता के पद पर होंगे, you won't be the slave of death. आप मृत्यु के गुलाम नहीं होंगे। You will be in the having an eternal life. आपके पास में अनंत काल का जीवन होगा। Hallelujah. हालेलुया। Everything is connected. हर एक चीजें आपस में जुड़ी हुई है। If you read very carefully, अगर बहुत ध्यान से आप पढ़ते हैं, your love of God will let you be away from the worldly sin. आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम संसार के गुनाहगारी के जीवन से आपको अलग रखेगा। Your love of God won't let you be the slave of sin.
आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है वो पाप का गुलाम आपको इस संसार में नहीं होने देगा। If you love Jesus, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, Jesus will never let you be the slaves of sin. यीशु आपको कभी भी पाप के गुलाम नहीं होने देंगे। He will redirect your ways. वो आपके दिशाओं को बदल He देंगे, will change your ways. वो आपके रास्तों को बदल He देंगे, will speak to you. वो आपसे बात करेंगे, He will tell you this is not a right way, my वो child. आपको बताएगा मेरे बेटे ये सही मार्ग नहीं है, Or this is not the correct decision of your ये life. सही निर्णय आपके जीवन का नहीं है। And when God speaks, और जब परमेश्वर बोलता है and if you don't obey, और आप नहीं मानते नहीं हैं, then you are getting in the hands of the sin. तब आप अपने आप को पाप के हाथों में सौंप रहे हैं। Yeah, you are not obedience. आप आज्ञाकारिता नहीं कर And मान the रहे। outcome of this surrender और इस अधीन इस समर्पण होने का जो परिणाम है will lead eventually to death. धीरे धीरे आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा, It will lead you to wrong decisions. आपको गलत निर्णय की तरफ ले जाएगा, It will lead to your wrong actions. आपको गलत कामों की तरफ ले जाएगा, And then you will land in the wrong तब circumstances. आप गलत परिस्थितियों में आ जाओगे। Then you will realize, जब आप महसूस करोगे I was in the path of God. कि मैं परमेश्वर के मार्ग में था, Everything was good, सब कुछ अच्छा था, but I didn't obey God. लेकिन मैंने परमेश्वर का हुक्म नहीं I माना, didn't love God. मैंने प्रेम नहीं किया, I didn't obey His commandment. मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं Now किया, today I landed up wrong. लेकिन आज मैं एक गलत परिस्थिति में आ गया हूँ। Just like a prodigal son. एक उड़ाऊ पुत्र की तरह His life was full of blessed things in his life earlier. उसका जीवन पहले आशीषमय स्थानों में था, Everything what he was having in abundance. उसके पास हर चीजें भरपूरी सी थी, Yes. But the thought came. लेकिन एक विचार आया, It separated him with his father. उस विचार ने उसको उसके पिता से अलग कर दिया, It separated him with the abundance, grace and blessings. उसको हर एक बहुतायत की चीजों से और हर एक प्रकार के आशीषों से अलग कर दिया। उस The विचार, worldly pleasure was only for a few moments. संसार की संपत्ति और जो कुछ भी दिखता है वो थोड़े समय का है। Hallelujah. हालेलुया। Do you agree to me? क्या आप मेरे से सहमत हैं? The world is perishable. संसार नष्ट होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। But whatever God promises, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, whatever the promises of God's are, और परमेश्वर की जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं हैं, what are the covenants of God is with you, जो कुछ भी वाचाएं परमेश्वर की आपके साथ हैं, is eternal, वो अनंत काल is की है, forever, वो हमेशा की and है, it will happen in your और life. वो आपके जीवन में पूरी होंगी। So when you surrender, सो जब आप समर्पित होते हैं, and when you surrender to the love of God, आप जब परमेश्वर के प्रेम को समर्पित होते then हैं, you obey the commandment. तब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते When you हैं। surrender to the obedience of जब God, आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को समर्पित हैं, then you will keep His commandment. तब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। When you surrender to faith of God, जब आप परमेश्वर के विश्वास को समर्पित there हैं, is new assurance to you. तब आपको आपके लिए एक आश्वासन है। Whatever you hope, जो कुछ भी आप उम्मीद करते हैं, God will let it happen in your life. परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, today we have talked about to whom do you surrender. आज हमने उस विषय में बात करी कि हम किसको समर्पित हैं। To whose voice you're listening to. आप किसकी आवाज को सुनते हैं? Your actions are showing us, or you can study with your actions to whom you are surrender. आपकी काम से आप समझ सकते हैं कि आप किसको समर्पित हैं। We are not here to judge you. हम आपका न्याय करने के लिए नहीं हैं, But if the Lord speaks to you today, लेकिन परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत करी है that your action should change, कि हमारे काम जो है वो बदल जाने the चाहिए। transformation of your life should be happening today. आपके और मेरे जीवन में आज परिवर्तन होना चाहिए। This is the right moment for you to change and transform. ये सही समय है आपके जीवन में बदलाव लाने का, परिवर्तित हो जाने का। Surrender to sin will eventually lead to death. पाप के ऊपर अगर आप समर्पित है, पाप को समर्पित है, तो आपके जीवन में अंत में मृत्यु आएगी। Yes, surrender to sin will lead you death. पाप के अधीन हो जाने से आपको मृत्यु को लेकर के जाएगा। Yes, the key verse was, do not know, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient as slaves, you are slave for the one you obey. मुख्य वचन जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुमने अपने आप को दासों की मानी सौंप देते हो, उसी के दास हो। Whether you are slave to sin, अगर या तो फिर आप पाप के गुलाम हो, which leads to death,
जो मृत्यु पर ले जाएगा or आपको, to the obedience, या तो आज्ञाकारिता की गुलामी, obedience of God, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, listening the voice of God. खुदा की आवाज को सुनना। When you listen the voice of God, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, it is not easy to complete it. ये आसान नहीं है कि उसको पूरा करें। Understand this. समझे इसको। Whenever difficult things happen in your life, जब भी आपके जीवन में कठिन चीजें होती or है, whenever there is a test in your life, और जहाँ पर भी आपके जीवन में कभी परीक्षा होती है, understand this is the thing that you are, it is very difficult, so it can be from God. समझे ये चीज जो होती है वो बहुत कठिन है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। God never did easy things. परमेश्वर आसान चीजें नहीं करता। For Moses, God never did easy things. परमेश्वर ने मूसा के लिए बहुत आसान चीजें नहीं करी। For Job, God never did easy things. अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने जो किया वो आसान चीजें नहीं किया। For Joseph, God never did easy things. यूसुफ के जीवन में जो घटित हुआ वो आसान नहीं था। They faced challenges. उन्होंने चुनौतियों का सामना किया। When they faced challenges, जब उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, they fight with the वे challenges. उन्होंने चुनौतियों से लड़ाई की। The outcome, they won the challenges. उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने चुनौतियों को विजय हासिल करी। Hallelujah. हालेलुया। When they won the challenges, जब उन्होंने चुनौतियों पर विजय हासिल करी, then they received the mighty blessings from God. तब उन्होंने आसमानी बरकतों को परमेश्वर से हालेलुया। हालेलुया। The mighty blessings of God is waiting for you सामर्थ्य आशीषें परमेश्वर की आपका इंतजार कर रही है, if you obey God's अगर word, आप परमेश्वर के वचन को if मानोगे, you fulfill God's will, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, if you love, you will obey His commandment. अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानोगे। Hallelujah. हालेलुया। The transformation of your life is seen with your actions. आपके जीवन का परिवर्तन आपके कामों से दिख पड़ता है। If you don't show with your actions, it is not transformed. अगर आपके कामों में परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो आपका बदलाव परिवर्तन नहीं हुआ है। It is just like a mask, ये एक चेहरा लगाया, मुखौटा लगाया जैसा है, and you are doing it. और आप इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपने परिवर्तन नहीं किया, एक मुखौटा लगाया। But my brothers and sisters, लेकिन मेरे भाई और बहनों, Jesus is looking to your heart, यीशु आपके दिल को देख रहे हैं, and He knows that you want to be और transformed. वो जानते हैं कि आपको बदलाव की जरूरत है। He is your creator. वो आपका निर्माण करता है। God is your creator, परमेश्वर आपका सृष्टि करता है, and He knows the creation. और वो जानता है अपनी सृष्टि को, He will never let the creation perish. और वो अपनी सृष्टि को कभी नाश नहीं होने देगा। Hallelujah. Hallelujah. He never wants a soul to go to hell. वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा जो है नाश हो जाए। Never a single soul to go to hell. कभी भी एक भी आत्मा जो है नरक पे जाए, ऐसा नहीं चाहता। He wants all of us to be saved. वो चाहता है कि हम में से हर एक बचाया जाए। Everyone sitting here to be saved. हर एक जो आज इस आवाज को सुन रहे वो बचाए जाए। Hallelujah. हालेलुया। The thing is, you should act. करना ये है कि आपको काम करना है, Your action should change. आपके कामों को बदलना है। Before coming to in Christ, प्रभु में आने से पहले whatever you were doing, जो कुछ भी आप कर रहे थे, if you are doing the same thing, अगर आप आज भी वही कर रहे the हैं, same practices, वही आदत हमारी है, the same practices if you're following, अगर वही चीजों को हम आज भी उसका पालन कर रहे हैं, if you were saying lie and you still say lie, अगर आप पहले भी झूठ बोलते थे, प्रभु में आने के बाद भी आज भी झूठ बोल रहे हैं, if you say promise something and you don't complete the promise, और पहले आप कुछ जैसे पहले अभी आप कुछ प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन आप उसको पूरा नहीं करते हैं, then you are not walking on the path of God. तब आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। My God doesn't teach these teachings. मेरा परमेश्वर इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता। God teaches us to be holy. परमेश्वर सिखाता है पवित्र हो जाए। God teaches us to be true. परमेश्वर सिखाता है सत्य हो जाए। God teaches us to be on a word. परमेश्वर सिखाते हैं कि हम वचनों को पकड़े रहें। Hallelujah. हालेलुया। Today is the time to surrender and be transformed in your life. आज का समय है कि हम अपने आप को समर्पित कर दे और बदलाव लाए। Many of us are surrendered to the world, हम में से बहुतेरे संसार को समर्पित हैं, and we are being dragged by the world. और हमें संसार ने हमको पकड़ के रखा है। It attracts us. वो हमें आकर्षित करता है। We find pleasure. हमें वहाँ पर सुख की अनुभूति होती We है, find happiness. हमें खुशी मिलती है, We find joy. हमें आनंद मिलता है। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, this joy is just for a short time. ये आनंद संसार का थोड़े समय का है। The world won't give you joy for eternity. संसार आपको अनंत काल का आनंद नहीं देगा। It won't last long. वो आनंद संसार जो देता है हमेशा का नहीं है। The prodigal son, why he came back? उड़ाऊ पुत्र वापस क्यों आया? Because he missed his life with his father. क्योंकि वो अपने पिता के साथ के जीवन को गुम कर चुका था।
We are the one who are experiencing the blessings of God. हम वो हैं जो परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करते हैं, And God wants us to grow in these और blessings. परमेश्वर चाहता है कि हम इन आशीषों में बढ़ें। Only if you surrender to God केवल परमेश्वर को समर्पित रहना है or you are obedient to God, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना है। this will lead to righteousness. आपको ये धार्मिकता में लेकर के And जाए। if you obey God's commandment, अगर आप परमेश्वर के हुक्म को मानोगे, then you show your love to God. तब आप अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को परमेश्वर के प्रति Let's दिखाओगे। stand, we will pray for आइए you. खड़े हो जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। We have shared the word of God with you. हमने परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा किया। Whatever God is speaking to you today, परमेश्वर जो कुछ भी आज आपसे कह रहे हैं, it is your time to act on it. ये आपका समय है कि उसके ऊपर आप काम करें। It is your time to say to God, Lord, ये आपका समय है कि आप परमेश्वर से कहें, प्रभु whatever I did in my past, मेरे जीवन में पूर्व में मैंने जो कुछ भी किया, if my life is not fully transformed, अगर मेरा जीवन पूरी तरह से बदल नहीं गया है, it is not aligned with your will. तेरी इच्छा के साथ मैं समरूप नहीं हूँ, But Lord, today I want that your will should be aligned. कि प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा में मैं समरूप हो जाऊं, My actions should align with your will. मेरे काम तेरी इच्छा के अनुरूप हो, I should not be the partakers of the world. मैं संसार के समानता में नहीं रहूं, I want to be the partakers of heaven. मैं स्वर्ग का सहभागी होना चाहता हूँ। Come on, let's open your mouth and say your prayer. आइए अपनी प्रार्थना को करें, अपने मुखों को खोले और अपनी दुआ को आज के वचन के दायरे में कहें प्रभु से। Whatever things you face difficult, surrender it to God. जो कुछ भी आप अपने जीवन में कठिन महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर को समर्पित कर दें। Don't surrender to the world. संसार को समर्पित मत करें। Fight with the world. लड़े संसार से, Fight with the challenges of the world. संसार की चुनौतियों का सामना करें, Keep fighting. लड़ते रहें। Joseph fight. यूसुफ लड़ता था, Moses fought. मूसा ने भी लड़ाई की Yes, and they won. और वो जीत गए। Why can't we win? हम क्यों नहीं जीत सकते? We will be winners. हम भी जीतेंगे, हम We will be विजेता- victorious one. हम भी विजेता होंगे। Come on, let's pray. Open your mouth. आइए अपने मुखों को खोलकर अपने लिए दुआ Say to करें। God, your will be completed. परमेश्वर से कहे, खुदा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, Only you be seen, Master. केवल तू मेरे जीवन में दिखाई दे प्रभु, My full transformation. मेरी पूरा तब्दीली होने दे, Full transformation of my life. मेरे जीवन का पूरा परिवर्तन आप करें। Hallelujah. Come on, open your mouth. आइए Thank अपने you, मुखों को खोले, Jesus. अपने लिए दुआ करें। This is your time. ये आपका समय है। If you're not opening your mouth, अगर आप अपने मुख को नहीं खोल रहे हैं, you will lose your time. आप आपके समय को खो देंगे। I think this time is a very good time for you. मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत सुंदर समय है And the time doesn't come again. और समय फिर से वापस नहीं आता। If the time doesn't come again, अगर समय वापस नहीं आएगा, then you can face more challenges. तब आपके जीवन में और अधिक कठिन समय आएंगे। This is the right time you're in the house of the Lord. ये सही समय है क्योंकि आप इस वक्त में परमेश्वर के भवन में हैं। The outcome of surrender you have understood. परमेश्वर के अधीन हो जाना, उसके अर्थ को आपने समझा है। If you love God, you will obey His commandment. अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत करोगे, उसके हुक्म को मानोगे। थैंक यू जीसस। If you hope, अगर आपको उम्मीद है, assurance is there with faith. आपके लिए विश्वास में आश्वासन भी है। Hallelujah. Who is inside your body today? Who is inside your heart today? जो आपके हृदय के अंदर में कौन है आज? हालेलुया। Are you surrendered to your fears? क्या आप अपने भय को समर्पित है? Are you surrendered to your doubts? क्या आप शक के ऊपर समर्पित है? Are you surrendered to your sickness? क्या आप बीमारियों को समर्पित है? Have you given up on your sickness? क्या आपने अपनी बीमारियों को छोड़ दिया है? Have you given up on your sickness? बीमारियों के ऊपर सब कुछ दे दिया है। आपको परमेश्वर ने बीमारियों के ऊपर सब कुछ दिया है। Give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दें। We are not here to give away on our difficulties. हम कठिनाइयों में छोड़ दें, गिव अप कर दें, उसके लिए नहीं है। God has called us to overcome in our difficult time. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कठिन समयों के ऊपर विजय हासिल करने के लिए। Are you challenged and did you surrender on the life's pressure you are dealing with? आप जिस प्रकार के जीवन में जीवन से व्यवहार कर रहे हैं, क्या आप उसमें समर्पित हो गए हैं? Your prayer will set you free. आपकी प्रार्थना आपको आजाद करेगी। Your word will set you free. आपके शब्द आपको आजाद करेंगे। Open your mouth and say, Lord, I want to be free. अपने मुखों को खोलें और कहें, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूँ, I want to have freedom. मुझे आजादी चाहिए, Give me freedom.
मुझे आजाद कर प्रभु। When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. जब आप पाप के गुलाम थे तो आप धार्मिकता से दूर थे। If you're not experiencing righteousness, अगर आप धार्मिकता का अनुभव नहीं कर रहे हैं then you are still slave to sin. तब आप अब भी पाप के गुलाम हैं। Lord never wants you to be the slave of sin. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप पाप के गुलाम रहें। He wants you to be free from sin. वो चाहता है कि आप पाप से आजाद हो जाएं। Likhandarama. हालेलुया, थैंक यू जीसस। My Lord, my Jesus is you. मेरा प्रभु, मेरा यीशु आपको सुन रहा है। He will help you वो आपकी मदद करेगा। in the time of difficulties. कठिन समय में आपकी मदद करेगा। Whatever things are troubling you, cast it on Jesus. कोई भी चीज जो आपको तकलीफ दे रही है, यीशु मसीह पर डाल दें। हालेलुया। Cast your cares on the Lord, अपने बोझ को प्रभु पर डाल दें। because your righteousness you won't be shaken. आपकी धार्मिकता की वजह से आप हिलाए नहीं जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because your righteousness you will be firm in the house of God. आपके विश्वास के अनुसार आप परमेश्वर के भवन में स्थिर रहोगे। In your life, in your spiritual life, you will be firm. आपके जीवन और आपके आत्मिक जीवन में आप स्थिर खड़े रहोगे। Whatever things you are not supposed to do, जो चीजें आपको करनी नहीं चाहिए but still it is happening in your life, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हो रही है, surrender it to God वो today. चीज को परमेश्वर को समर्पित कर दें। Surrender it to God today. परमेश्वर को आज समर्पित कर दें। Lord, I don't want to do, still I do it. प्रभु मैं करना नहीं चाहता, फिर भी मैं करता It हूँ। happens with my hands. ये मेरे हाथों से होता है, It happens with my mouth. ये मेरे मुख से होता है, It happens with my word. मेरे शब्दों से होता है, It happens with my action. प्रभु मेरे कामों से ये होता है। Surrender it to God today. परमेश्वर को समर्पित कर दे वो चीजें। The ones who wants to be transformed in their life and completely surrender your life, जो अपने जीवन में परिवर्तित होना चाहता है, परमेश्वर को समर्पित होना चाहता है, put your hand on your chest. अपने हृदय पर अपने हाथ को रख लें And remember this. और याद रखिए इसको। When you pray with me, जब आप प्रार्थना करते हैं, you should turn from your old life. आप अपने जीवन को, खुद के जीवन को बदल दें। Your actions should change. आपके काम करने के तरीके बदल जाने चाहिए। Don't let this prayer be just a prayer. केवल प्रार्थना करना है इसलिए प्रार्थना मत करें। Or don't just see that if we pray then things will be okay. ये मत, सिर्फ ये मत सोचे कि हम प्रार्थना करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। Or just don't try this prayer. और केवल प्रयत्न मत करें प्रार्थना करने का। You have to act on this prayer. आपको इस प्रार्थना के ऊपर चलना है। From today onwards, if you don't transform your life, आज के बाद यदि आप अपने जीवन को बदलते नहीं हैं, then still you will be in the slave of sin. तो फिर भी आप पाप की गुलाम ही रहेंगे। But if you transform your life, लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदल देते and my हैं, God will help you to do it, और मेरा परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप ऐसा कर सकें। you should have a true urging desire. आपके पास में एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए बदलने की। Urging desire. एक जो है, एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए बदलने की, Then only it will happen. तभी ये संभव है। A true desire. एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए, A pure heart. एक शुद्ध हृदय होना चाहिए, A pure thought. एक शुद्ध विचार होनी A चाहिए, pure mind. एक शुद्ध मस्तिष्क होना A चाहिए, pure soul. एक शुद्ध आत्मा होनी चाहिए। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। God will help you to transform. परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप बदल जाएं। Your action should change. आपके काम बदल जाना चाहिए। When you give your life to God, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे चुके हैं, your thoughts should change. आपके विचार बदलना चाहिए। It should be godly thoughts. वो परमेश्वर के ईश्वरी विचार होने चाहिए, It should align with the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा के समरूप होने चाहिए। If your actions are not aligned by the will of God, then you are not walking on the path of अगर God. आपके काम परमेश्वर की इच्छा के समान नहीं है, तो आप परमेश्वर के मार्ग पर भी नहीं हैं। But today my God is helping you. लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपकी मदद कर रहा He है। is helping each one of you वो हमें से हर एक की मदद कर रहा है कि हम बदल जाएं। who truly want to transform their life. जो सचमुच में बदलना चाहते, परमेश्वर उनकी आज मदद If you कर रहा want to see transformation in your life, है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, it is the one you can transform your life. एक आप केवल आप ही है जो आपके जीवन को बदल सकते Your action should change. हैं। आपके काम बदलना चाहिए। God is teaching us to change our action today. परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि आज
हम अपने कामों को बदल We all are blessed ones. हम सब आशीषित लोग हैं, But don't let be the partakers of the world. लेकिन हम अपने आप को संसार की समानता में न बनाएं। If you will be the partakers of the world, you will be away from God. अगर आप परमेश्वर संसार के समान होंगे, आप परमेश्वर से दूर होंगे And sin will enter in you. और पाप आपके अंदर में प्रवेश And करेगा। then you will be in the slavery of sin. तब आप पाप के गुलाम हो जाएंगे जो पाप को आप करते हैं, And God will be very unpleased. और परमेश्वर बहुत नाखुश हो जाएंगे।